What I have for you a very beautiful poem, and you will come to know that poem is a lyric in the form, that's a lyric, and that poem is also in the form of the sonnet. I think कि अगर if yeah, that Petrarchan model of sonnet पे भी वो है, and this poem is in our syllabus, means we have to go with two poems of विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये जो दो पोयम है उसमें एक आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है और दूसरा आपका टिंटेन एबी है। सो फर्स्ट टेकिंग द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लाइन बाय लाइन। उस पर पीडीएफ फाइल मैं कल आपको उसका भेजूंगा, लेकिन आज मैं उस पोएम को एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट शेयरिंग द यू कैन से देयर इज अ शीट उसको लेकर के। तो जस्ट शेयरिंग विद यू image, and here you find what? Here you find, is it visible? Yes, sir. Yeah, first I would like to tell you कि it's a very beautiful poem, and the poem is what? The poem is a sonnet. You have to keep in your mind. I don't think that you need to write down it. You have only to remember that कि it's a beautiful sonnet composed by whom? Composed by William Wordsworth. Number one point. Number two point, where I say कि it's a beautiful sonnet composed by William Wordsworth. Already we know कि विलियम वर्ड्सवर्थ a leading poet of romantic age, किस एज के? रोमांटिक एज के। और अगर आपको याद होगा कि मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहा था एज को लेकर के, जिसमें मैंने ऑगस्टन एज को डिस्कस किया था और मैंने एज ऑफ जॉन ड्राइडेन को डिस्कस किया था। तो यू आर कवरिंग आल्सो व्हाट? यू आर आल्सो कवरिंग सम मूवमेंट्स आल्सो। उस प्लेटफॉर्म पे वो डिस्कस होता रहेगा, वहां से आपको वो चीजें मिलेंगी। एक और चीज मैंने अभी आज आपको मैंने भेजा है पूरा 33 पेज का फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर के मैंने भेजा हुआ, वो भी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा। यू विल गेट नोट्स। एंड यस्टरडे आई डिस्कस्ड अनदर प्लेटफॉर्म, यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पे मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, लिटरेरी टर्म, जो आपके यहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, खास करके नेगेटिव कैपेबिलिटी, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, egotistical sublime. I also discussed touchstone method, philistinism, ये सब चीजें। और टुडे आज मैंने वहीं पर ही डिस्कस किया है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, एंड देन एस्थेटिक मूवमेंट, और एक और टर्म रहा है। तो जो टर्म का डिस्कशन है वो मैं यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, उसका मैं वीडियो और पीडीएफ फाइल मैं भेजता रहूंगा। पीडीएफ फाइल मैंने पहले ही भेज दिया है, ग्रुप में पड़ा हुआ है। ऑल द पीपल हैव वॉच्ड इट, आई थिंक कि दे गॉट इट। लेकिन उसका वीडियो पर डे, जैसे कल मैंने उसका वीडियो जो मैंने किया था वो मैंने आपको भेजा है, ग्रुप में भी आपके मैंने भेजा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस प्लेटफॉर्म पर, आपके प्लेटफॉर्म पर, आई विल ओनली डिस्कस द पोयम, but on the other platform I will discuss the movement, I will discuss the literary term, and those pdf file I will share, and you will be able to get what? You will be able to get these things। तो उसको आपको जाना है, यू डोंट हैव टू लीव दैट थिंग, वो चीजें आपको कवर करनी है वहां से जो है। Just you will come to know कि I was telling you William Wordsworth, a well-known poet of romantic age, but before taking the poem, I just want to tell you कि romantic age का मतलब 1798 to 1837। And when I say कि 1798, this 1798 means lyrical ballad published in 1798, a jointly work of H.T. Coleridge and William Wordsworth, a jointly work of H.T. Coleridge and William Wordsworth। और उसके बाद when I say about 1837, it means that कि क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। एंड यू विल कम टू नो जो ये रोमांटिक एज रहा है, इन दिस एज यू फाइंड नेचर, you find natural beauty, you find countryside beauty, you find something blank words, you find open field, open sky, you find
something which we can say ki, relationship between man and nature in the poetry of William Wordsworth. You find humanism, and you also find a healing touch. You find nature as guide, guardian, caretaker, nurse. You find pantheism, you find mysticism. Later on, when I will take, you can say, Tinted Abbey, a beautiful dramatic lyric composed by William Wordsworth. I will explain in a very detailed way how do you find. And you have already gone with this age and the particular poem, and you will come to know whenever you talk about romantic age, we must know French Revolution 1789. We must know the Gita was first translated from Sanskrit into English in 1785. It brought the concept of mysticism. We must know some other things also. तो वो सब चीजें रही, और जो रोमांटिक एज रहा है उसमें दो तरह की स्कूल ऑफ पोइट्री थी. Old generation of romantic poets, young generation of romantic poets. These things you find. But that is another thing. Here for you, what I have, you will come to know it's a well-known sonnet written by William Wordsworth, composed by William Wordsworth, and Wordsworth followed Petrarchan model of sonnet. What model of sonnet? Petrarchan model of sonnet. Already we know कि at the name of poet Petrarch, the concept of Petrarchan model of sonnet came. And Petrarchan model of sonnet has octave and sestet. Octave 8 lines stanza and sestet 6 lines stanza. जो octave है वो 8 लाइन की स्टैंजा को कहा जाता है, और जो सेस्टेट होता है वो किसको कहा जाता है? 6 लाइन्स की स्टैंजा को कहा जाता है. एंड राइम स्कीम इसका जो रहा ऑक्टेव का और सेस्टेट का, खासकर पेट्रार्चल मॉडल, ए बी, बी ए बी, बी ए सी डी सी, समटाइम्स सी डी सी. दैट इज अनदर थिंग. बट when I talk about विलियम वर्ड्सवर्थ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत सारा वर्क रहा है. एक उनका आपका द प्रील्यूड के अलावा वोड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, उनका टिंटन एबी, उनका 523 सॉनेट, डर्डन सॉनेट्स, और यू आल्सो नो कि सम ब्यूटीफुल पोएम्स, एक्सकर्जन उनका पोएम था. एंड यू आल्सो कम टू नो द बॉर्डर्स उनका एक ट्रेजिडी थी. सो नथिंग नीड टू टेल अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. यू ऑलरेडी नो कि ही वाज द लाउडिएट पोएट एंड गॉट लाउडियरशिप इन 1843. 1843 में उनको मिला हुआ था. और उनके क्लोज फ्रेंड में से एस टी कॉलनी थे, रॉबर्ट साउदे थे. वो सब चीजें रही. बट व्हाट यू फाइंड इन दिस पोएम, ये जो पोयम है, इन दिस पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ criticizes the materialistic life of English people. What I want to say, what I am telling you कि William Wordsworth criticizes the materialistic life of English people. जो English people है उनकी materialistic life को विलियम वर्ड्सवर्थ criticize करते हैं. ये चीज ध्यान में रखना है. एंड व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ composed this sonnet, he found that English people were passing the materialistic life late, and soon they were doing only one thing: earning money and spending money. They were wasting their time. So earning money, yeah, getting money, spending money, and late and soon means early morning, late night. They were busy. They have only one work. They have only one job. They were doing only one business. And in the eye of William Wordsworth, if you give your time only in earning and spending money, it means that we are wasting our powers. Not only time, but we are wasting our energies, we are wasting our power. फिर उनका ये कहना है, what does he say? He says that we should give some time to nature. We should try to see the beauty of nature. And nature is sustainer. Nature is who, nature is guide, nature is guardian, nature is caretaker, nature is like a nurse, and nature gives us healing touch. जैसे एक शब्द हिंदी में अपने यहाँ कहा जाता है कि प्रकृति की उपासना करना. तो जो प्रकृति की उपासना है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वी फाइंड इन द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. या इफ यू से कि
नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ की नजर में गॉड, जो कि वो उनका एक कहना है कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑलमाइटी गॉड दैट इज इनविजिबल, that has no shape, no size, no design, but that God can be understood very well by seeing the natural object created by that Almighty God. So एक तरफ तो वो इंग्लिश पीपल का जो नेचर है उसको लेकर के क्रिटिसाइज करते हैं, और इंग्लिश पीपल का नेचर क्या है, ओनली टू अर्न मनी लेट एंड सून, एक तो नेचर ये है। दूसरा चीज वो ये कहते हैं कि नेचर जो सब कुछ हमारे लिए है, हमारे पास समय नहीं है उसको देखने का, लिटिल वी सी नेचर दैट इज आर्स, इसको लेकर के फिर उन्होंने आगे कहते हैं कि अगर हम लोगों में सुधार नहीं आया, अगर हम नहीं सुधरे, या हमारे अंदर जो है प्रकृति का इम्पोर्टेंस नहीं आया, या प्रकृति को जो जिस तरह से वो बताते हैं अगर हम उस तरह से उसको नहीं देखे, तो व्हाट विल बी, ही सेज दैट कि आई वुड लाइक टू बी अ वर्शिपर ऑफ पेगन गॉड, आई वुड लाइक टू बी अ वर्शिपर ऑफ पेगन गॉड। सो ये उनका अपना कॉन्सेप्ट है कि जो पुरानी परंपरा है, आप कह सकते हैं कि जो पूजा सिस्टम जो पुरानी परंपरा है, मैं उधर लौट जाना चाहूंगा, बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम टू behold the beauty of nature. So here you find what the world is too much with us. The very first line of the poem, the world is too much with us, late and soon. If you say the world is too much with us, what does it mean? It means that we people, English people, yeah, we English people of the 19th century at the age of William Wordsworth have devoted, yeah, in our life there is only for what, there is only the importance of the worldly life. We are much devoted to worldly life. It's womb, it's the statement of William Wordsworth, yeah, William Wordsworth in the very first line says that कि we English people are much devoted towards what, towards worldly life. Later he used the word late and soon, late and soon, late night, and soon, soon का मतलब अर्ली मॉर्निंग, तो लेट एंड सून, लेट नाइट एंड सून, सून मीन्स अर्ली मॉर्निंग, we do only one job, we do only one thing, and what is that? Only one thing we do only one job, and what is that? We only devote ourselves, we only do one thing related to what? Related to this earthly life, related to this worldly life. That is not a good sign for our future. So, William Wordsworth in the very first line says, we English people became mechanical people. We English people became a type of people who gives value only to this earthly life, this materialistic life, और late and soon. Late का मतलब late night, soon का मतलब early morning. We are doing what? Getting and spending. Getting and spending. We are only busy to earn money. Earn money means getting money, and spending money मीन्स स्पेंडिंग दैट मनी। तो हम लोग पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ये जो कल्चर है इनडायरेक्टली या प्रोबेबली ही वांट्स टू से कि लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग we are doing only one job, we are doing only one thing, and what is that? Getting and spending. We people are getting means what, and spending means what? Getting and spending, we have only interest, we are only interested to earn money and to spend that money. और जो हमारा पैसा खर्च करने का जो सिस्टम है, कल्चर है, that might be perhaps he is suggesting that we spend late night in pub, restaurant, hotel, something dance party, that is rave party. That culture was not that time rave party, but I'm just giving you example कि late night we ultimately do this job. This is why फिर वो कहते हैं कि
We lay waste our parts. It means that if we are doing this job, we are wasting our parts, we are wasting our energies. We will get nothing doing such a type of thing. उनका ये कहना है कि ऐसा करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हमें कुछ नसीब नहीं होगा। वी ले वेस्ट आर पार्ट्स, हम केवल अपने पार्ट्स को नष्ट कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। वी ले वेस्ट आर पार्ट्स, वी विल गेट नथिंग एट ऑल, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, whenever you go, yeah, whenever you say this, whenever you say that, you find that ki getting and spending money will waste our parts. Little we see in nature that is ours. नाउ अब वो अपने मेन मोटिव पर आते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। मेरे दो सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ सेज व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी आर डूइंग। अब उनका सजेशन है कि जहां समय खर्च करना चाहिए, वी आर नॉट स्पेंडिंग आवर टाइम। लिटिल वी सी, लिटिल का मतलब ना के बराबर, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, this is the word little. Little we see in nature, nature in capital letter, nature does not the human nature which we see in classical neoclassical age. Nature here means prakriti, sustainer, संरक्षक, पालने वाली, पोसने वाली, सबको जीवन दायिनी जिसको कहा जाता है, जीवन देने वाली। तो जो नेचर है, इन अदर वर्ड्स वी कैन यूज द वर्ड ऑलमाइटी गॉड, कि गॉड को, गॉड के द्वारा बनाई गई दुनिया को समझने का हमारे पास समय नहीं है। बट व्हाट वी आर डूइंग ओनली वन जॉब, एंड व्हाट इज दैट, गेटिंग एंड स्पेंडिंग मनी, या यू कैन से लेट night and early morning we are doing only one business, and what is that business? To earn money, to spend money. And we have been created by Almighty God not do this business, not do this work, not do this job, but we have to keep some time to behold the beauty of nature that is ours. Ours का मतलब यही नेचर ही सब कुछ हमारी है, यही जीवन देती है, यही पेट को पालती है, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ भी समय नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि डिड यू कम टू नो दीज फोर लाइंस? Yes, sir. Yes, sir, clear. Okay, okay. So little we see in nature that is ours. We don't have time to see the, yeah, to behold the beauty of nature that is ours. We have given our hearts away. We have given our hearts away. हमने अपने दिल को या हार्ट्स को दूर कर लिया है, हमने अपने हार्ट को दूर कर लिया है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा वी हैव गिवन आवर माइंड अवे, he is using the word hearts. We have given our hearts away. It means that the heart that is pure, and always you will come to know, Wordsworth uses, yeah, Wordsworth says that nature never did betray the heart. प्रकृति कभी किसी दिल को धोखा नहीं देती, जो दिल ईमानदारी के साथ प्रकृति को, प्रकृति में अपने आप को जमा कर देता है। तो हियर वी सेज, he is not saying I. Here he says first person का plural we का मतलब all the people, all the English people including William Wordsworth. उन्होंने कहा कि we have developed such a type of habit where there is no room for nature. In our heart there is no love, in our heart there is no regard, in our heart there is no affection, in our heart there is no beauty for nature. और हमने अपने दिलों को दूर कर लिया, we have given our hearts away. किससे दूर कर लिया है? प्रकृति से, गॉड से, नेचर से, गाइड से, गार्जियन से, सस्टेनर से, केयर टेकर से। और हमने अपने दिलों को कहाँ लगा रखा है? पैसा कमाने में, पैसा खर्च करने में। एक ऐसा कल्चर डेवलप कर लिए है जो केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर हमें ले जा रहा है। सो
नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू से, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। और यह जो जब हमने इसको और जबकि हमें इससे दूर नहीं करना चाहिए था, किससे दूर कर लिए हुए हैं? उस प्रकृति से। और वह प्रकृति जो हमारे लिए क्या है? सार्डिड बून है। बून माने वरदान। बून वरदान। नेचर जो हमारे लिए वरदान है, जिसके प्रति हमारे दिलों में सम्मान होना चाहिए था। हमने उन्हीं दिलों को, उन्हीं विचारों को, उसी इमोशंस को, उसी जज्बात को उस प्रकृति से दूर कर लिया, जो हमारे लिए क्या है? सार्डिड बून है, सब कुछ देने वाली है। फिर उसके बाद उस चीज को समझाने के लिए नेक्स्ट लाइन में वह कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। और कौन सी एग्जाम्पल देते हैं? जहां पे वो खड़े हुए हैं, वो समुद्र का किनारा है, और कहते हैं दिस सी। देखिए यह जो समुद्र है, समुद्र यहाँ कैपिटल लेटर में है, तो जो सी है वो पर्सोनिफाइड किया गया। इस लाइन में आप देखते हैं, द सी हैज बीन पर्सोनिफाइड, एंड ही सेज दैट दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। यह जो समुद्र है, जो खोले हुए है अपने, बेयर्स मतलब ओपन, दैट ओपन्स हर बॉसम टू द मून। यह समुद्र जो खोले हुए है अपनी बाहों को स्वागत करने के लिए, किसका? मून का स्वागत करने के लिए। अब आप कहेंगे समुद्र कैसे मून का स्वागत कर सकता है? यस, ऑलरेडी आई सेड कि इट हैज बीन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग्स बिहेव्स लाइक ह्यूमन। तो समुद्र इज वेलकमिंग, द सी इज वेलकमिंग टू whom? टू मून। मून हैज नॉट बीन पर्सोनिफाइड, बट यू विल कम टू नो कि मून और समुद्र का रिलेशन है टाइड के आने और जाने से। सो जो मून है ये भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जो सी है ये भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को मिलाने में किसका कंट्रीब्यूशन है? नेचर का कंट्रीब्यूशन है। सो ये these are the natural objects. We have to give some time, we have to spend some time to look to behold the beauty of nature, and we should try to find out ki this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and we don't have time to hear the beautiful voice of the wind. वह विंड जो बह रही है और हाउल कर रही है, दिस हाउल साउंड को इंडिकेट करता है, ऑडिटरी इमेज। द विंड्स दैट बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। यह जो हवा हर समय बह रही है, क्या इसके संगीत को सुनने का समय हमारे पास है? यह जो समुद्र है, जो अपनी बाहों को फैला करके चांद का स्वागत करने को तैयार है, क्या इस ब्यूटी को देखने का समय हमारे पास है? तो आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। क्यों नहीं है? बिकॉज वी हैव टाइम, या वी स्पेंड द होल टाइम late at night, means early morning, late night, only to earn money, only to spend money. Only we are passing the mechanical life, we are passing the earthly life, materialistic life, where there is no room for nature, where there is no respect for nature, where there is no means you can say regard for nature. And what we are doing, we don't have to see these beautiful objects which has been mentioned by William Wordsworth. The sea is ready to welcome the moon, and the wind that is howling, the wind that is blowing, it is also giving some beautiful music. We don't have time to go with these things, and are up gathered now like sleeping flowers, and are up gathered, अब गेदर इकट्ठे हो गए हैं। नाउ अब, लाइक किसके समान? सिमली का यूज किया गया। नाउ किसके? स्लीपिंग फ्लावर्स, सोते हुए फूल। कह रहे कि अब अगर आप देखेंगे, जो हवा है अचानक शांत हो गई है। जो समुद्र किसका वेलकम करने को तैयार था? आप कह सकते हैं कि चांद का वेलकम करने के लिए। ऐसा लगता है उसका मिलन पूरा हो गया है, और सब किस कंडीशन में आ गए? स्लीपिंग मोड में आ गए हैं। स्लीपिंग फ्लावर्स, सोते हुए फूल।
तो जो सोते हुए फूल हैं, फूल तो ऑलरेडी इनोसेंट होते हैं, और अगर उनमें इस तरह का इनोसेंस दिखाया जाए कि दे आर स्लीपिंग, दे आर नॉट वेकिंग, इट मीन दैट देयर इज नो नॉइज, नो नॉइज, नो हाउलिंग, नो यू कैन से टाइड, बल्कि ऐसा लगता है एंड आर अप गेदर, इट सीम दैट दे ऑल आर रैप्ड इनटू समथिंग, into one, and just sleeping, and they seems like the flower sleeping flower, no noise, no disturbance, a type of shanti, you can just use the word. For this, for everything, for this, for everything, emphasis करके इस चीज को जो जिस चीज को उन्होंने बताया इसके लिए, और फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, मतलब नेचर की वो चीज, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया सी का, मून का, बहती हुई हवाओं का, स्लीपिंग फ्लावर्स का। इसके अलावा उन्होंने कहा और नेचर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, वी आर आउट ऑफ ट्यून। बहुत बड़ा जो है दर्द है, किसका दर्द है, दिस इज द पेन आप कह सकते हैं, या एक तरह का व्यंग है मटेरियलिस्टिक लाइफ पर। और वो कहते हैं वी इंग्लिश पीपल आर आउट ऑफ ट्यून, वी इंग्लिश पीपल आर आउट ऑफ ट्यून। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वी इंग्लिश पीपल हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल। ऐसा लगता है हम इंग्लिश पीपल का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है कि नेचर की संगीत को हम सुन सके। नेचर जो बहती हुई हवा है वो क्या कह रही है, क्या गा रही है, उसको सुनने का हमारे पास समय नहीं है। जो प्रकृति है, उस प्रकृति का हमारे दिलों में कोई सम्मान नहीं है। जो समय हमारे पास है वो होटलों में गुजारने के लिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ को गुजारने के लिए है। वी डोंट हैव टाइम टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर। फिर वो कहते हैं फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। वी डोंट हैव एनी ट्यून। हमारे अंदर कोई लय नहीं है, कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, कोई संगीत नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं, इससे जुड़ने का हमारे अंदर कोई सलीका तरीका नहीं। आगे वो कहते हैं इट मूव्स अस नॉट। ऐसा लगता है इन चीजों का अब हमारे ऊपर कोई असर नहीं। इट मूव्स अस नॉट, दीज थिंग्स आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग मी। और हर जगह उन्होंने अस का यूज किया है, नॉट मी, ऐसा नहीं कि अपने के लिए। इट मूव्स अस नॉट। ग्रेट गॉड, हे ईश्वर, ग्रेट गॉड, जो हे गॉड, और कौन से गॉड? ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट। वो कहते हैं हे मालिक, हे ईश्वर, ग्रेट गॉड को एड्रेस कर रहे हैं। जब वो ग्रेट गॉड को एड्रेस कर रहे हैं तो यू कम टू नो की एपोस्ट्रॉफ, आई वुड रादर बी अ पैगन। अगर जो है ग्रेट गॉड, अगर इसी तरह से लोगों की लाइफ चलती रही जिस धरती पर आपने मुझे भेजा है, तो हो सकता है हे ईश्वर, मैं आपकी पूजा ना कर सकूं, मैं आपकी इबादत ना करूं, और मैं अपने विश्वास को तब्दील कर दूं, किसमें? पैगन में। मैं जो है, जो पुरानी पद्धति पूजा की रही है, मैं उस पर चला जाऊं। सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न। और जो मेरा धार्मिक विश्वास है कहीं वह आउटवर्न ना हो जाए। आउटवर्न, जो सिस्टम आज का, उससे मैं बाहर ना चला जाऊं। सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, मैं उन चीजों पर विश्वास ना करने लगूं जो आउट ऑफ फैशन हो चुका है, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। So you will come to know William Wordsworth is emphasizing, "Oh my Lord, oh my God." कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी विश्वास डगमगा जाए, because people don't have time to see you, people don't talk about you, people don't have time what you created and what you created for them, and you are the sustainer, you are the master, you are the creator, you are the owner of the whole universe, you are the king of the king. But the people whom you have created, they don't have time to see you, to behold the beauty which has been created by you. And this is why ऐसा लगता है मेरा विश्वास डगमगा जाएगा
these things are not influencing the people, तो कहीं ऐसा ना हो कि I myself would turn our belief from you into means the thing that become out of fashion, कि कहीं ऐसा ना हो कि in near future I would be a be worshipper of a pagan. So might I standing, आज जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, on this pleasantly ली माने पाश्चात्य चारागाह, क्योंकि वह समुद्र के किनारे खड़े हैं और वहां पर जो खुला मैदान है उसको देख रहे हैं और कह रहे हैं, जब मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ इस खूबसूरत घास के मैदान पर, हैव ग्लिम्सेस, तो मुझे एक झलक दिखाई पड़ रही है ग्लिम्सेस का, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और वह झलक यह उम्मीद की किरण है कि मैं कुछ ब्यूटी को देख रहा हूँ, कुछ ग्लिम्सेस को देख रहा हूँ, और यह जो ग्लिम्सेस है, जो झलक है, शायद मैं उसकी वजह से चीजों को ना भूल पाऊं, दैट वुड मेक मी लेस, कम से कम फॉरलॉर्न, फॉरगेट कर सकूं क्या चीज, हैव साइट ऑफ अ प्रोटियस, ऐसा लगता है जैसे मुझे प्रोटियस का दृश्य नजर आ रहा, प्रोटियस सी गॉड, हु इज प्रोटियस सी गॉड, और जब वो प्रोटियस का और ट्राइटन का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि नाउ ही हैज बिलीव इन पेगन, नाउ ही हैज बिलीव इन यू कैन से कि पेगन गॉड, therefore he says that जब मैं खड़ा हूँ आज इस समुद्र के किनारे और इस हरे भरे चरागाह में, तो मैं कुछ तस्वीरें देखता हूँ और ये मुझे लगता है कि मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा, और क्या दृश्य नजर आता है, प्रोटियस का मुझे नजर आता है जो राइजिंग फ्रॉम द सी, जो इसी समुद्र से बाहर उठ रहा है, तो प्रोटियस सी गॉड है जो समुद्र से ही उठेगा, उसका अपना मीनिंग है कि उसका भी क्रिएटर वही ऑलमाइटी गॉड है, लेकिन उस ऑलमाइटी गॉड की इबादत की जगह पहले लोग किसकी इबादत करने लगे थे, प्रोटियस की, तो उन्होंने बताया कि हर चीज को बनाने वाला तू ही है, चाहे प्रोटियस रहा हो चाहे ट्राइटन रहा हो, और आज जब मेरा यकीन तुझ में है तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जिस तरह से अपने विश्वास को बदल रहे हैं, कहीं ऐसा हो कि नियर फ्यूचर में मैं भी पेगन गॉड में विश्वास ना करने लगूं, जबकि वो सिस्टम आउट ऑफ फैशन हो चुका है। फिर वो कहते आर हियर ओल्ड ट्राइटन, और ऐसा लगता है कि ट्राइटन जो है क्या करता है, वो भी सी गॉड है, ब्लो, ब्लो का मतलब बजाता है, हिज रीत, रीत का मतलब शंख की वो माला पहन रखा है, और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ट्राइटन भी दिखाई पड़ रहा है जो कि समुद्र के किनारे पड़े हुए जो शंख है उनकी माला अपने गले में पहना, उससे वह आवाज दे रहा है या बुला रहा है। तो अगर मुझे ट्राइटन दिखाई पड़ रहा है या सुनाई पड़ रहा है, ट्राइटन की आवाज सुनाई पड़ रही, प्राटियस समुद्र से उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि मेरा विश्वास डगमगा रहा है, हे ईश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो है उस गॉड को जिसने पूरी कायनात को बनाया है, वह उसकी उपासना की जगह मैं उधर की उपासना करने लगूं, जो चीजें आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी अगर मैं टाइटन को केवल एक इस रूप में देखूं कि वह आपके द्वारा बनाया गया है, प्रोटियस आपके द्वारा बनाया गया है, तो इट मीन्स दैट आई हैव बिलीव इन यू, और मैं जो है आपका जो एक वर्ल्डली वर्ल्ड को क्रिएट करने का जो तरीका है, मैं इसको भूल नहीं पाऊंगा, या आई हैव अ फर्म बिलीव इन यू। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो 40 लाइन्स पोयम, और आपका पेट्रार्चल मॉडल पर ऑक्टेव 8 लाइन्स, सिस्टेट 6 लाइन्स, ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए सी डी, या sometimes C D C, these things you find. And what is the uh, key point of the poem? The key point of the poem is what we have to do and what we are doing. हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, we have to show love, we have to show affection, we have to show respect to nature, and we have to behold the beauty of nature created by Almighty God. And but what we are doing, we are only busy to earn money later, and soon we are not doing anything honestly. So these were the points which I have done. If you have any problem, you can just ask. Agar if you have any query.
Otherwise, I would like to wind up it. Sir, So I think ki now you have done it very well. You came to just understand ki what I have explained. You have to go with this video, with this poem again. And if you find any helping matter from any place, you can just read twice, thrice, and you will be able. Especially क्वेश्चन क्या आता है, ट्राइटन क्या है, और ट्राइटन के अलावा जो प्रोटियन का जिक्र किया गया उसको लेकर के कि वर्ड्सवर्थ ने किस पोयम में जिक्र किया है, वो सी गार्ड है. इफ द क्वेश्चन कम्स कि हु वाज ब्लोइंग द रीथ, तो टाइटन वाज ब्लोइंग द रीथ. दोनों दे सकता है कि प्रोटियन ब्लो कर रहा था रीथ को या ट्राइटन. तो दैट वाज द ट्राइटन. एंड पहला ग्लिम्स वो किसका देखते हैं, प्रोटियन का देखते हैं, फिर उसका देखते हैं. वो लोगों को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज पीपल आर पासिंग द मटेरियलिस्टिक लाइफ, और लोगों से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वी हैव टू शो सिंपैथी रिगार्ड टू ऑलमाइटी God. These were the points. If you have any query or doubt, you can just ask. Otherwise, I have to bind up this session. Okay, I think that there is no question.